Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Physio Gainer. So today's topic is salivary secretions. As it is the continuation of the digestive system itself, so main we will know about the salivary secretions. What is salivary secretion? Salivary मतलब saliva का secretion होना. तो main function of mouth और the functional anatomy of mouth क्या है? is the पहला चीज क्या होता है? oral cavity. क्या present होता है? oral cavity. Formed by oral cavity किससे बना होता है? cheeks, लिप्स एंड द पैलेट से. और अगेन इट इज इंक्लोज्ड बाय. अब चीक्स, लिप्स एंड पैलेट किससे इंक्लोज्ड बाय होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सैलिवरी ग्लैंड विच हेल्प इन द सैलिवरी सिक्रीशंस. ओके, नाउ अब बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? इन द माउथ. और क्या करता है? सिक्रीट कराता है सलाइवा. व्हाट इज सलाइवा? इट इज अ डाइजेस्टिव जूस. ठीक है. As we have studied about the functional anatomy of mouth, let's go towards the function of mouth. As you can say, there are 6 main function of the mouth other than eating or including the eating. First is the mastication, second is the taste, third is the speech, the expression and the sixth in the breathing. अब आप सोचिए, ब्रीथ या मेस्टिकेशन मतलब च्यूइंग करना फूड. तो माउथ का काम क्या होता है? च्यूइंग करना फूड को. ठीक है. तो सेकंड क्या होता है? टेस्ट. ऑब्वियसली जो माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? टंग. टंग में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स. तो इट हेल्प इन द टेस्ट ऑल्सो. वॉट अबाउट द स्पीच? ऑब्वियसली आप देख रहे हो मैं भी बोल ही रही हूँ, तो दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ माउथ ओनली. वॉट अबाउट द अपियरेंस? ऑब्वियसली फेस है, फेस का कोई स्ट्रक्चर है, दैट हेल्प इन द अपियरेंस, जो सामने से दिखता है, दैट इज ऑल्सो डन विद द सम पोर्शन इज इन्वॉल्व ना माउथ का, that is also it help in the appearance. What about the expression? Obviously you smile, you angry, you are sad. So these all are the expression which is done by your mouth. What about the breathing? Obviously nose along with mouth also help in the breathing pattern. Now we'll talk about the salivary gland. So salivary gland, as we have all studied, that it is present in the mouth and it has secretion of digestive juice. So what about the major gland? There are parotid glands, submaxillary and the lingual. That is also sublingual. तो as per the name itself क्या होता है कि parotid gland कहाँ प्रेजेंट होता है? In front of your ear. Submaxillary मतलब जो maxilla होता है just below it. And the sublingual, obviously lingual मतलब कि क्या होता है? Tongue. tongue के नीचे. तो these are the parotid gland, submaxillary and the sublingual. What about the minor gland? Minor gland are lingual, mucus, lingual serous, buccal, labial and palatal. ठीक है. Now we'll talk about the classification of salivary gland. There are serous, mucus and mixed. These are the 3 classification of salivary gland. What are the name of that 3 classification of salivary gland? They are mucus, serous and mixed. Now we'll talk about the properties of saliva. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सलाइवा? सलाइवा का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितना अमाउंट ऑफ सिक्रीशंस होता है पर डे. तो एज यू कैन से द वॉल्यूम इज 1000 ml टू 1500 ml पर डे सिक्रीशंस होते हैं. कितना? एक दिन में 1000 ml टू 1500 ml जो है सिक्रीशन होता है पर डे में. ठीक है. कौन सा मेजर ग्लैंड है तो जो कंट्रीब्यूट करता है सिक्रीशंस में? एज आई सेड अबाउट द मेजर ग्लैंड, दे आर द पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड द सबलिंगुअल. तो जो मेजर ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कराते हैं हमारे ये सिक्रीशंस के लिए. नाउ वी शुड ऑल्सो नो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सलाइवा, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल. Here you can say there is a slightly acidic hota. Obviously it is not like water natural, but it is not normal, neither it is basic. It is acidic, slightly acidic. As you can say here, the specific gravity of it, as you can say 1.0022 and 1.012. So these are the specific gravity. The main you have to remember is the volumes, contribution at the reaction or the nature of the saliva. ठीक है. What about the tonicity? It is hypotonic to plasma. प्लाज्मा से कम टोन होती है इसकी. ठीक है. प्लाज्मा को कंपेयर किया जाए तो इट इज hypotonicity to plasma. Okay. What about the main function of saliva? As you know, the main function of salivas are, there are several functions of saliva. We will go line by line. The first is the preparation of the food for swallowing. As I said, whenever we intake the food, what happened? It get lubricated with the help of saliva which is present in the mouth.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूसिन ऑफ सलाइवा लिब्रिकेट्स बोलस एंड फैसिलिटेट स्वेलिंग। क्या होता है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, माउथ में च्यूई करते हैं, तो ऑब्वियसली सलाइवा होता है जो उसको च्यूई करने में हेल्प करता है, वो फॉर्म करता है स्मॉल पार्टिकल के साथ साथ क्या बनाता है, बोलस, और वो हेल्प करता है सॉलोइंग में। ठीक है, अगर ऐसे कोई चीज़ हार्ड रहेगा वो सॉलो करना इतना ईजी नहीं होगा, इसीलिए वो क्या करता है, सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाता है, तो सॉलोइंग में हेल्पफुल होता है। दूसरा क्या होता है, अप्रिशिएशन ऑफ द टेस्ट। ऑब्वियसली टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, लेकिन सलाइवा की हेल्प से वो मिक्स होता है उसके साथ, उसके बाद इट लीड टू द appreciation of the taste. Okay, it enhance the taste. Now what the major role is the digestive function? As we know, there are three major enzymes which help in the digestion. These are the amylase, maltase and the lingual lipase. What about the amylase? Amylase does dextrin, converts dextrin into maltose. ठीक है, ये क्या करता है, डेक्स्ट्रिन को माल्टोज में कन्वर्ट कराता है। व्हाट अबाउट द माल्टेज? माल्टेज डू माल्टोज कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको नहीं भूलेगा माल्टेज का क्या काम होता है, सॉरी अमाइलेज का क्या काम होता है, वो कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रिन टू माल्टोज। व्हाट अबाउट द माल्टेज? इट डज माल्टोज इनटू ग्लूकोज। ठीक है, और देयर इज अ सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज एज वी हैव स्टडीड दैट इट कन्वर्ट द डेक्स्ट्रिन इनटू maltose, but also it do digest the carbohydrate. Okay, what about the lingual lipase? Lingual lipase का मेन फंक्शन क्या होता है, it digest the lipids. Obviously carbohydrates are there, lipids are there, many things are there. So यहाँ पे क्या करता है, ये digest करता है हमारे lipids को. Now fourth function is the cleaning and protecting the function. Cleaning और protecting function होता है, क्या क्या होता है, obviously आप फूड ईट करते हो उसके बाद भी सलाइवा का सिक्रेशन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जब फूड खाते हो तभी सलाइवा होता है, नहीं, आप नॉर्मली भी ऑब्जर्व करोगे तो अदर देन इफ यू आर नॉट हैविंग एनी फूड देन ऑल्सो इट हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। तो वो क्या करता है, हमारा क्लीन करता है माउथ को एज वेल एज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम अनदर फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, फिफ्थ इज द रोल इन स्पीच। ऑब्वियसली जैसे आप देख सकते हो मैं भी बोल रही हूँ तो लिब्रिकेशन हो रही है, दैट ऑल्सो हेल्प इन द स्पीच। सिक्स्थ इज द एक्सक्रेटरी फंक्शन, इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ द सर्टेन पार्टिकल विच आर नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी। 7 is the regulation of the body temperature. So it is given but it does not help in the regulation as it does not have any role in body temperature. Okay, but it does have a function in regulation of the water balance. वाटर बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेशन के लिए इसका फंक्शन है, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल बट इट डज नॉट हैव एनी रोल इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, now we'll move towards the nerve supply of the salivary secretions. What are the main nerve supply? There are the two main nerve supply. They are the parasympathetic and the sympathetic. What about the parasympathetic? Parasympathetic जैसे मैंने पहले बताया ये क्या कराता है, किसी चीज को इंक्रीज कराता है, while sympathetic do decrease everything. ठीक है, तो parasympathetic का यहाँ पे क्या है, ये क्या कराता है, it secretion of the saliva with large quantity of water. ठीक है, ये क्या कराता है, मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीट कराता है सलाइवा जिसके साथ साथ वाटर का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, ग्रेट न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज नोन एज एसिटाइलकोलिन। थर्ड इज द एक्टिवेट द एसिनास सेल्स एंड डायलेट द ब्लड वेसल्स ऑफ द सलिवरी ग्लैंड। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है लेकिन यहाँ पे डिलेशन होती है, तो इसी वजह से ये क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। दूसरा ये सिक्रेशन ऑफ सलाइवा विथ लार्ज क्वालिटी ऑफ वाटर। तीसरा काम क्या होता है, ये क्या कहता है, एक्टिवेट करता है एसिनास सेल्स को और डायलेट करता है ब्लड वेसल्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड को। ठीक है, सिंपैथेटिक एज वी said it causes the secretion of saliva which is thick. यहाँ पे सलाइवा जो है वाटरी थी, मीन्स थिन कंसिस्टेंसी थी, पर यहाँ पे थिक कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब सलाइवा सिक्रेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे सिंपैथेटिक में क्या हो रहा है, थिक हो जा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, इंक्रीज होता है एवरीथिंग ना, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, इसी वजह से वो उसकी जो सलाइवा की कंसिस्टेंसी वो थिक हो गई। व्हाट अबाउट सेकंड, इट ऑल्सो एक्टिवेट द एसिनास सेल्स। यहाँ पे एक्टिवेशन जब एसिनास सेल्स का हो रहा है तो ये क्या करा रहा है, वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। यहाँ पे क्या होता है, वेजो डायलेशन होता है, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन होता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होता है डायलेट हो रही है, बट यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कंस्ट्रिक्ट यानी कि नॉरो होगी। नाउ इट ऑल्सो सिक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज ए नॉर एड्रेनालिन। ऑलवेज रिमेंबर सिंपैथेटिक हैव ए न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज नॉर एड्रेनालिन, whilst parasympathetic has a acetylcholine as a neurotransmitter. Okay, let's move towards the reflex regulation. What about the reflex regulation? Reflex regulation plays an important role, as we know that it also help in the secretion of saliva. How it the reflex regulation help? It also consists of two things, that is unconditional and the condition. Unconditioned and the condition.
व्हाट अबाउट द कंडीशन, कंडीशन मतलब किसी परिस्थिति का होना ज़रूरी है, किसी चीज़ का होना ज़रूरी है, यानी कि किसी स्टिमुलस का होना ज़रूरी है फॉर रिस्पॉन्स, बट अनकंडीशन इज समथिंग विच इज़ नेचुरल विच अकर वाया बॉडी इटसेल्फ. The main about the condition, it required any experiences, it required by experience. लाइक क्या होता है कि हमने जलेबी खाई है अपनी ज़माने में, हमने बचपन में या कभी भी जलेबी खाई है, इस वजह से अगर हम जलेबी सामने देखेंगे वी विल हैव, ये नॉर्मल है, नेचुरली क्या होता है सिक्रेशन आ जाएगी, बिकॉज वी हैव सर्टन एक्सपीरियंस इन आवर पास्ट. इसी वजह से क्या होता है, इट रिक्वायर्ड एन एक्सपीरियंस, इट गेट एलिसिटेड बाय साइट, स्मेल, हियरिंग और थॉट ऑफ फूड. हम चाउमीन के बारे में सोचें, हम बिरयानी के बारे में सोचें, हम सर्टेन फूड ऑफ द थिंग्स के बारे में सोचें, या फिर स्मेल आ जाती है उसकी, या फिर किसी कोई सामने से हमें बोल रहा है तो हम सुन रहे हो, या फिर हम देख लें, तो इसकी वजह से जो भी सिक्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ कंडीशनल, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कंडीशन है, कोई स्टिमुलस है, तभी रिस्पॉन्स आ रहा है. बट वॉट अबाउट द अनकंडीशन, अनकंडीशन में क्या होता है, बाय बर्थ होता है. ठीक है, दिस रिफ्लेक्स इंड्यूस सेलेब्री सिक्रेशन. कैसे सेलेब्री सिक्रेशंस होता है, एग्जाम्पल व्हेन फूड इज प्लेस्ड टू माउथ सिक्रेशन अकर, हमने माउथ में जो है फूड को डाला, इंजेक्शन ऑफ फूड अकर, अपने आप सिक्रेशंस होंगे, तो दैट इज नॉर्मली नॉर्मल फिनोमेना. नाउ विल टॉक अबाउट द अप्लाइड फिजियोलॉजी. व्हाट इज अप्लाइड फिजियोलॉजी? अप्लाइड फिजियोलॉजी मतलब कि कोई डिसफंक्शंस होती है, एबनॉर्मल फंक्शंस होते हैं, देन इट लीड टू द अप्लाइड फंक्शन फिजियोलॉजी. इफ यू विल राइट दिस इन योर पेपर इट डेफिनेटली इंक्रीजेस योर मार्क्स इटसेल्फ. ठीक है, first you can say hyposalivation, second is the hypersalivation, there are drooling, xerostomia, mumps, etc. हाइपोसलाइवेशन मतलब जहाँ पे डिक्रीज हो जाती है सलाइवा, सलाइवा का सिक्रेशंस डिक्रीज हो जाए. हाइपर मतलब इंक्रीज हो जाना. ठीक है, ड्रूलिंग मतलब जो नाइट ड्रूलिंग हो जाती है, मतलब कि सलाइवा का ड्रूल होना, अपने आप जो है तो माउथ से बाहर आना. ठीक है, जीरोस्टोमिया मतलब क्या होता है, देयर इज ड्राई माउथ, बहुत जो होता है ड्राई हो जाती है हमारा माउथ. ठीक है, देयर इज अ डिक्रीज, वेरी मच डिक्रीज इन द सिक्रेशन, ना सिक्रेशन हो रही है ना ही वहाँ पे वाटर इनटेक इतना है, इसी वजह से जीरोस्टोमिया होता है. व्हाट आर द मम्प्स? मम्प्स मतलब एक्टिव वायरल इन्फेक्शन होता है. मम्प्स तब होते हैं जब वहाँ पे जो होता है बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस होती है या पानी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट इज़ द वेरी गुड इन्वायरमेंट फॉर द इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शन टू प्रोड्यूस, तो इसी वजह से मम्प्स का फॉर्मेशन होता है. आपको समझ में आ गया होगा ड्रूलिंग, जीरोस्टोमिया और मम्प्स. नाउ विल टॉक अबाउट द हाइपरसलाइवेशन एंड हाइपोसलाइवेशन. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द हाइपो. हाइपो मतलब मैंने बता दिया है डिक्रीज हो गया सलाइवेशन का. क्यों? इसका दो रीज़न हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है. टेम्परेरी मतलब क्या हो गया, किसी कंडीशन, किसी इमोशनल या फिर कोई डर की वजह से कोई कुछ देख लिया आपने, या फिर कुछ ऐसे कोई कंडीशन आ जाती है उसकी वजह से, या सैड हो तो उसकी वजह से हाइपोसलाइवेशन हो सकता है. दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, फीवर है आपको तो उसकी वजह से हो सकता है. एंड थर्ड इज़ द डिहाइड्रेशन. कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी हाइपोसलाइवेशन हो सकता है. ठीक है, क्या डिहाइड्रेशन कैसे हो गई, फॉर एग्जांपल लाइक लूज मोशंस हो गए, या फिर आप बहुत दूर से रन कर रहे हो, सुबह से पानी नहीं पिया, तो इट मे लीड टू द हाइपोसलाइवेशन. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द परमानेंट हाइपोसलाइवेशन? परमानेंट में हो सकता है बेल्स पैल्सी ये कंडीशन. फिर इसके बाद क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया सलाइवरी ट्रैक्ट, जो सलाइवरी डक्ट होते हैं वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसी के रीज़न की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो वो सलाइवा का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर कंजेनाइटली जो है सलाइवरी ग्लैंड का एब्सेंस होना, तो इस वजह से क्या होता है, हाइपोसलाइवेशन हो सकता है. नाउ मूव टुवर्ड्स द हाइपोसलाइवेशन. हाइपरसलाइवेशन ये क्या होता है कि जहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में सलाइवा का सिक्रेशंस होना, दैट इज नोन एज अ टाइलिज्म्स और शियालिज्म्स एक्सेट्रा. ठीक है, हाइपरसलाइवेशन कब हो सकती है, जब प्रेगनेंसी होती है, जब वुमेन जो होता है प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम में हाइपरसलाइवेशन हो सकता है. सभी में नहीं हो सकता, इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. न्यूप्लाज्मा मतलब एक काइंड ऑफ ट्यूमर होता है, उसमें भी हो सकता है. साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, या फिर साइकेट्रिक कंडीशंस हो सकती है इन केस ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग. तो ये सच कंडीशंस होती है जहाँ पे हाइपरसलाइवेशन हो सकती है. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू हैव एनी डाउट let me know in the comment section box. Thank you.